Hello students, welcome to the class. Students, in the last class we studied about the features of print function. Then I started the topic data types of Python. In that we completed the topic numbers, strings and list. हमने 3 data types के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था. That was numbers, then strings, then list. उसके बाद 2 data types remaining हैं. 2 more are there. One is tuple and another one is dictionary. So I am going to continue with that topic. First we will see about tuples. Somewhere you will heard it as tuple. कहीं कहीं पे आप इसका pronunciation tuple सुनेंगे या फिर tuple, both are same. See on the screen. Tuples are represented as group of comma separated values of any data type within parentheses. You can see the examples of tuples. P equals to, within parentheses the values are given as 1, 2, 3, 4, 5 separated by comma. Second example, Q, that is A, E, I, O, U, 5 values are given. Then R, 7, 8, 9, then A, B, C. So these are the examples of tuples. See here, these are the examples of tuples. Before seeing the example, let me tell you the definition of tuples. As I said, tuples are represented as group of comma separated values. See here, you are separating the values by giving comma. That means list of values are given within parentheses. यहाँ पर आपको ध्यान देना है, tuples में जो भी आप list of values देते हैं, चाहे वो integer type हो, floating type हो या फिर string type हो, all the values are enclosed within parentheses. This is important. But जो previous class में हमने देखा था list में हमने देखा था सेम आप इसी तरह list of values दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर instead of parentheses we used to give square bracket. वहाँ पर जब भी आप लिस्ट देते हैं, लिस्ट में आप जो भी वैल्यूज़ देंगे उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है. लेकिन ट्यूपल्स में देखिए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ जो आप देते हैं दैट इज़ गिवन विद इन पैरेंथेसिस. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल्स. कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोग्राम में विच वन इज़ ए लिस्ट एंड विच वन इज़ ए ट्यूपल. ट्यूपल में आपको याद रखना है पैरेंथेसिस यूज़ किया जाता है, whereas in the case of list data type we use square bracket. That means list of values will be given within square bracket. And similarity is that in both the data types we give values of any data type. That means ये ज़रूरी नहीं कि list या tuples में आप जो values दे रहे हैं वो किसी एक data type का ही होना है. It can be of any data type. Any data type means it can be of integers, that is numeric values. It can be of स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं. फ्लोटिंग वैल्यूज़ जैसे डेसिमल वाले वैल्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल 5.2. इस तरह के वैल्यूज़ को भी आप ट्यूपल्स में भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप लिस्ट में भी दे सकते हैं. तो आपको याद रखना है कि आप किस में कौन से ब्रैकेट को यूज़ करेंगे. लिस्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है और ट्यूपल्स में आपको पैरेंथेसिस यूज़ करना है. होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो द लास्ट डेटा टाइप of Python is dictionary. See on the screen, the dictionary is an unordered set of comma separated key value pairs within curly braces with the requirement that within a dictionary no two keys can be the same. That is, there are unique keys within a dictionary. See here students, in dictionary key value pairs are there. ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर सबसे important क्या है, यहाँ पर आपको की वैल्यू का पेयर मिलेगा. सो विच वन इज की एंड विच वन इज द वैल्यू. सी हियर, इफ आई एम गिविंग अ डिक्शनरी एज वॉवल्स, मैंने डिक्शनरी क्रिएट किया है, द नेम ऑफ द डिक्शनरी इज वॉवल्स एंड दिस इज द की वैल्यू पेयर. यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस यूज नहीं करना है. ऑल द वैल्यू की वैल्यू पेयर शुड बी एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस. तो ये आपका मेन डिफरेंस है, कहाँ पर आपको पैरेंथेसिस यूज करना है, कहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और कहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे. तो कर्ली ब्रेसेस आपका डिक्शनरी में यूज होता है. सो इन द डिक्शनरी द फर्स्ट वन दैट विल बी द की. ये आपका की है. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में व्हाट आर द कीज, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी वॉवल्स. यहाँ पर आप ए, ई, आई, ओ, यू को क्या बोलेंगे, दीज आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी वॉवल्स. नेक्स्ट वैल्यूज. अब वैल्यूज इसमें क्या होगा,
1 2 3 4 5, जो की के साथ जो एसोसिएटेड रहता है आफ्टर कोलन, दैट इज द वैल्यू. सो हियर वैल्यूज आर 1 2 3 4 एंड 5. तो 1 2 3 4 5 आपका क्या है, वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी वॉवल्स. तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला जो होता है कोलन से पहले लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज द की, और राइट हैंड साइड जो कोलन के आप लिखते हैं दैट इज द वैल्यू. यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी, जो की वैल्यू पेयर में जो की होता है, इट शुड बी यूनिक. ये इंपॉर्टेंट है. जो भी की होगा डिक्शनरी में, कीज विल ऑलवेज बी यूनिक. यूनिक मतलब क्या है, वो आपका डुप्लीकेट नहीं होना है. इट शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड. लेकिन जो वैल्यू है वो आपका यूनिक होना ज़रूरी नहीं है. वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकता है. दैट मीन्स अ वैल्यू कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, बट की शुड बी यूनिक इन अ डिक्शनरी. सो दिस इज important in dictionary. So these are the data types available in Python. 5 data types हमने पढ़ा है. नंबर्स देखा, नंबर्स में हमने इंटीजर्स, बूलियन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ा, देन स्ट्रिंग्स हमने पढ़ा, उसके बाद लिस्ट, देन ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी. होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. इन लिस्ट एंड ट्यूपल्स आई सेड, लिस्ट में आप वैल्यूज जो भी देते हैं वो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एस 1 2 3. लेकिन जब आप ट्यूपल देते हैं, ट्यूपल में आपको पैरेंथेसिस यूज करना है. सेम वैल्यू मैं दे रही हूँ 1 2 एंड 3, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर चेंज हो रहा है. तो क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो आपका ब्रैकेट है. सेकेंड डिफरेंस इज दैट वॉट एवर वैल्यूज यू आर गिविंग इन अ लिस्ट, दैट इज म्यूटेबल. और जो भी वैल्यूज हम ट्यूपल में देते हैं दैट इज इम्यूटेबल. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स. म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है पाइथन में? स्टूडेंट्स, in Python what are the data types? All the data types and data objects are categorized into 2 types. One is mutable and another one is immutable. So next we are going to see mutable and immutable types. क्या difference है दोनों में? As I said, all the data objects in Python are categorized as mutable and immutable types. First we will see immutable. What do you mean by immutable types? See on the screen. The immutable types are those that can never change their value in place. In these types, the variable names are stored as references to a value object. Each time you change the value, the variable's reference memory address changes. In Python, the immutable types are integers, floating point numbers, booleans, strings and tuples. So students, immutable types means which does not change the value in place. इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो देते हैं, जैसे इम्यूटेबल में मैंने ट्यूपल ले लिया है t, आई एम गिविंग एज 1 2 3. तो जो भी आप वैल्यूज देते हैं वो वैल्यू को आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज, ऐड और डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम अ इम्यूटेबल टाइप्स. वंस अगेन आई एम टेलिंग, जो भी इम्यूटेबल टाइप्स होता है उसमें जो भी वैल्यूज आप देते हैं इट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर. एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया है, आपको प्रोग्राम के बीच में या प्रोग्राम के एंड में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट ऐड, यू कैन नॉट डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम अ इम्यूटेबल टाइप. As I said in example tuple, but in the case of mutable we can change the value. We'll see one example. Suppose I am giving as p equals to 5, q equals to p, r equals to 5. These are the 3 statements. Then again I am giving p equals to 10, q equals to 7 and r equals to q. These are the three sets of statements. This one is one set of statements and this one is another set of statements. Now what is variable here? Variables are p, q and r. p, q, r आपका variables है जो कि किसको point कर रहा है, किसको refer कर रहा है? The value 5. p is referring to the value 5,
Q is referring to P, P is referring to Y, that means Q is also referring to the value 5 and R is referring to the value 5. That means all the three variables P, Q and R refer to a same value 5. यानी कि जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्टेटमेंट्स में, all the three variables are pointing to the same value that is 5. यहाँ पर दोनों 5 डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पर Q में it is referring to P, P is referring to 5, that means indirectly Q is referring to 5. Same I am showing in block. Suppose these are the values stored in a block 5, 6, 7, यहाँ पर देखिए I have given example 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 blocks I have shown. Now P is referring to the value 5. So this is the variable P. It refers to the value 5. Next Q. Q is also referring to P. P किसको refer कर रहा है? P को. That means Q is also referring to the value 5. Then R. It is also same. It refers to the value 5. That means all the three values have the same memory address. जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर है वो सेम मेमोरी एड्रेस में जिसमें सेम वैल्यू है उसी को रेफर कर रहा है. दैट मीन्स जब आप वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, सपोज P, Q, R, तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपका ब्लॉक चेंज नहीं होगा, बल्कि जो न्यू ब्लॉक को वो रेफर करता है वो ब्लॉक को वो पॉइंट करेगा. दैट मीन्स द ओरिजिनल वैल्यू डजंट गेट चेंज्ड. नाउ सी दिस थ्री स्टेटमेंट्स. P रेफरिंग टू द वैल्यू 10. P किसको पॉइंट कर रहा है? 10 को. तो अगर हम इसको शो करना चाहते हैं P किसको पॉइंट कर रहा है? 10. नेक्स्ट Q इज रेफरिंग टू द वैल्यू 7. यहाँ पर Q. देन लास्ट वन R. R रेफर्स टू द वेरिएबल Q. Q किसको पॉइंट कर रहा था? 7 को. दैट मीन्स अगेन इट इज पॉइंटिंग टू द सेम वैल्यू 7. दैट मीन्स इफ दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है तो आपका इंटरनली ऐसे वर्क होता है, इस प्रकार मेमोरी को वो पॉइंट करता है. बट व्हेन दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, यू सी द सेम वेरिएबल्स हैव चेंज देयर मेमोरी एड्रेस. जो सेम वेरिएबल सेम है आपका P, Q, R, लेकिन जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है वो आपका ये ब्लॉक नहीं है. It is changed depending on the value. P 10 को रेफर कर रहा है, Q is referring to 7 and R is also referring to 7. So you can see how the memory block changes, how the memory address changes when a variable point to a different value. So in this way you can understand that the values in a immutable types, जैसे ये एग्जाम्पल था ट्यूपल का. फॉर एग्जाम्पल ये हम मान लेते हैं ट्यूपल है. तो इस तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप वैल्यूज़ का जो ओरिजिनल पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट ऐड और यू कैन नॉट डिलीट द आइटम्स फ्रॉम द इम्यूटेबल टाइप्स. होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज म्यूटेबल. सी ऑन द स्क्रीन. द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज whose values can be changed in place. Mutability means that in the same memory address, new value can be stored as and when you want. That means mutable types में क्या होता है, values आपका जो place में आप देते हैं वो change होता है. That means the same memory address will be there and the values will be changed. In Python only 3 types are mutable. What are they? List, dictionaries and sets. पाइथन में म्यूटेबल टाइप्स में केवल 3 डेटा टाइप्स या डेटा ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं. लिस्ट है, डिक्शनरीज है एंड सेट्स. सो एज आई टोल्ड, इन म्यूटेबल टाइप्स you can change the value. That means you can modify the value, you can add a new value and you can delete or remove the already existing value from the list. For example, mutable में list, dictionaries and sets. Python में केवल 3 म्यूटेबल टाइप्स है, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट्स. तो लिस्ट का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज आई एम गिविंग अ लिस्ट एज L इक्वल्स टू 2, 4, 6. द नेम ऑफ द लिस्ट इज L एंड द वैल्यूज इन द लिस्ट आर 2, 4 एंड 6. वॉट विल बी द इंडेक्स ऑफ दिस वैल्यूज? इंडेक्स मैंने बताया था, ऑलवेज इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो आपका जो वैल्यू 2 है उसका इंडेक्स क्या होगा? 0, देन 1, देन 2. दैट मीन्स हाउ मैनी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज n-1 जो होगा वो आपका लास्ट
वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू होगा. नाउ इफ आई एम गिविंग एज L of 1 equals to 20. This is one statement. L equals to, I am declaring a list. There are 3 values in the list of the type integer. यहाँ पर जो तीनों values है वो integer type है. Then the next statement is L of 1 equals to 20. What does it mean? Now I am changing the value L of 1, यानी list में जो index value 1 में जो value है that will be changed with 20. यानी आप देखिए यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 1 में आप इस तरह काउंट मत करिएगा 1 2 3, आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2, तो L of 1 मीन्स इंडेक्स वैल्यू 1. इंडेक्स वैल्यू 1 में आपका क्या वैल्यू है? दैट इज 4. दैट मीन्स इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वैल्यू दैट इज 20. तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेंगे सो द लिस्ट वैल्यू विल बी चेंज. सो नाउ द न्यू वैल्यू विल बी 2. Instead of 4 it will be replaced with 20 and 6. Number of values will be same, but the second value, the value having index 1 will be changed to 20. यानी previous value देखिए आपका 4 था वो change हो गया है 20. So in this way you can see you can change the value in a list. यानी कि एक बार जब आपने प्रोग्राम में लिस्ट डिक्लेयर कर दिया है तो आप in between the program you can change the value in the list. आप किसी भी पोजीशन में किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं. You can change the value, you can delete the value and you can insert a new value. तो ओरिजिनल में आपने 3 वैल्यूज डिक्लेयर किया है तो ये ज़रूरी नहीं कि थ्रू आउट द प्रोग्राम इस लिस्ट में केवल 3 वैल्यूज ही होगा. You can add some more values to the existing list L. You can delete, you can remove any value from any position and you can change. As I have changed the value which exists in the position 1. इंडेक्स वैल्यू 1 में जो वैल्यू था उसको मैंने चेंज किया है फ्रॉम 4 to 20. तो इससे पता चलता है जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन में वैल्यू चेंज होता है विच चेंज देयर प्लेस तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेबल टाइप्स. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फीचर है दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय इम्यूटेबल टाइप्स. यानी स्ट्रिंग्स, ट्यूपल्स, इंटीजर्स, ये सब में क्या होता है आप इस तरह की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं. एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया है आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको वैसे ही यूज़ करना है. यू कैन नॉट चेंज लेटर ऑन इन अ प्रोग्राम. सो दिस इज द difference between mutable and immutable types. That is very important. You must understand it. Students, after mutable and immutable, the next topic is expression. What do you mean by expression in Python? See on the screen. An expression in Python is any valid combination of operators, literals and variables. What are the types of expressions? That is arithmetic, string expression, relational, logical and compound, etc. That means many more expressions are there. We are going to see these expressions: arithmetic, string, relational, logical and compound. So students, what do you mean by expression? Expression is nothing but it is a valid combination of operators and you can say operand या literals और variables. किसी भी operators then variables and literals का जब एक combination बनाते हैं and it should be valid, so that will be called as expression. Variables आपको पता है जिसमें value store किया जाता है. You know what is literals? That is constant value and you know what is operator. तो इन जब तीनों का जब आप combination करते हैं you give a valid combination of these 3 things, then it form a expression in Python. So we are going to see one by one what are the different types of expression in Python. The first one is arithmetic. It involves numbers, that is integers, floating point numbers, complex numbers and arithmetic operators. यानी कि arithmetic expression में integers को involve किया जाता है. Integers मतलब numeric values. You can see the examples. The first example is 2 plus 5 into 3. Then next is 8 into 6 by 5. You can see here values are given 2, 5 and 3. Then what are the operators here? Plus and into. In the first example, plus and into are the operators. In the second example, into and divided by, that is slash, that is the operator. So when you combine arithmetic operators along with the value, that is numbers. Numbers can be integer as well as floating point और complex numbers. क्योंकि आपको पता है complex numbers को भी आप floating की तरह ही express करते हैं. It is represented as floating values. So
जिस भी एक्सप्रेशन में नंबर्स इन्वॉल्व होता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. सेकेंड वन, रिलेशनल एक्सप्रेशन. इट इन्वॉल्व्स लिटरल्स एंड और वेरिएबल्स ऑफ एनी वैलिड टाइप एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स. यानी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन में आपका क्या इन्वॉल्व होगा, रिलेशनल ऑपरेटर होगा, देन लिटरल्स होगा. फॉर एग्जाम्पल, x greater than y, this is the first example. Second is x equals to y not equals to z. You can see in both the examples what is the relational operator. Relational operator आपका कौन सा है? In the first example greater than, in the second example equal to and not equals to. तो इस तरह के जब आप रिलेशनल ऑपरेटर को किसी भी वेरिएबल्स के साथ या फिर लिटरल्स के साथ आप कंबाइन करते हैं, सो यू विल गेट एन एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज रिलेशनल एक्सप्रेशन. समझ में आ रहा है आपको? अर्थमेटिक में आप अर्थमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं अलॉन्ग विथ नंबर्स या वेरिएबल्स, लेकिन आप रिलेशनल में क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर जैसे लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के जब ऑपरेटर्स को आप वेरिएबल्स के साथ या लिटरल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको रिलेशनल एक्सप्रेशन मिलता है. नेक्स्ट वन, लॉजिकल एक्सप्रेशन. इट इन्वॉल्व्स लिटरल्स एंड और वेरिएबल्स ऑफ एनी वैलिड टाइप एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. यानी कि जब आप वेरिएबल्स को या फिर लिटरल्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स आर देयर, एंड और नॉट. तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को जब आप किसी भी वेरिएबल्स या फिर लिटरल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो यू विल गेट एन एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल एक्सप्रेशन. सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स आर ए और बी. यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर है और वेरिएबल्स है ए बी. देन सेकेंड एग्जाम्पल बी एंड सी. यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यूज किया गया है एंड द वेरिएबल्स आर बी एंड बी सी. थर्ड एग्जाम्पल ए एंड नॉट बी. यहाँ पर 2 लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया गया है, वन इज एंड, अनदर वन इज नॉट, एंड वेरिएबल्स आर ए एंड बी. सो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड वेरिएबल्स होता है वो कहलाता है लॉजिकल एक्सप्रेशन. समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. इट इन्वॉल्व्स 2 स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, one is plus, another one is into, that is asterisk symbol, and string operands. यानी कि string expression में 2 ऑपरेटर आप string ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं. एक प्लस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं, अनदर वन जो into के लिए आप यूज़ करते हैं दैट इज asterisk symbol. ये जब सिंबल्स को आप ऑपरेंड के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल्स आर hello, then plus symbol is given, then world. 2 strings are there, one is hello, another one is world. Second one, hello, then into 2. First example is hello plus world. In the second example, it is written as hello into 2. These are the string operators, plus और into. ये आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है. तो जब स्ट्रिंग ऑपरेटर को आप इस तरह के स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको स्ट्रिंग एक्सप्रेशन मिलता है. तो हियर प्लस और इनटू, ये यहाँ पर क्या वर्क होता है, यहाँ पर ये अर्थमेटिक की तरह वर्क नहीं होगा. नॉर्मली अर्थमेटिक में प्लस सिंबल मीन्स एडिशन होता है, तो यहाँ पर भी एडिशन की जगह यहाँ पे इसको बोलते हैं कंकैटिनेशन. इफ वी यूज प्लस सिंबल अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग्स, जब आप स्ट्रिंग्स के साथ प्लस सिंबल को यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, देन इन एक्ट एज कंकैटिनेशन ऑपरेटर. कंकैटिनेट का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग और जॉइनिंग 2 और मोर स्ट्रिंग्स टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रिंग. यानी कि जब आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर 2 स्ट्रिंग के बीच में यूज़ करते हैं तब आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, यू विल गेट द आउटपुट एज हेलो वर्ल्ड. यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, जैसा मैंने दिया है एज इट इज आपको हेलो वर्ल्ड कंकैटिनेट, दैट मीन्स ज्वाइन होके कंबाइन होके आपको आउटपुट सिंगल स्ट्रिंग मिलेगा हेलो वर्ल्ड. सेकेंड ऑपरेटर इनटू. जब हम इनटू को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, यू विल कॉल इट एज रेप्लिकेशन. यहाँ पर आपको इसको बोलना है रेप्लिकेशन. यहाँ पर जो स्ट्रिंग ऑपरेटर जो एस्ट्रिक है दैट एक्ट एज रेप्लिकेशन ऑपरेटर. तो रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है,
उतनी बार वो रेप्लिकेट होगा, रिपीट होगा. दैट मीन्स हेलो इंटू 2, दैट मीन्स हेलो विल बी प्रिंटेड ट्वाइस, 2 बार रेप्लिकेट होना है. सो द आउटपुट विल बी हेलो हेलो. होप इट इज क्लियर टू यू. ये आपका इंपॉर्टेंट है. कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस साइन, जब कंकैटिनेट करेंगे तो जितना भी स्ट्रिंग होगा वो कंबाइन होकर आपको आउटपुट सिंगल स्ट्रिंग में मिलेगा. लेकिन जब आप इनटू यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल, देन वो रेप्लिकेशन की तरफ वर्क करेगा, जहां पर वो जितनी बार आपने दिया है, जो न्यूमरिक वैल्यू आपने दिया है आफ्टर एस्ट्रिक सिंबल 2 दिया है, दैट मीन्स द स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड 2 टाइम्स. अगर आप यहाँ पर 3 लिखेंगे तो आपको यहाँ पर हेलो और एक बार प्रिंट होगा. 3 टाइम्स the string will be replicated. So these type of string operators when combined with string values, that will form a string expression. Hope it is clear to you. Students, when you evaluate these type of expressions in Python, जब भी आप इस तरह के arithmetic expression या relational या फिर logical expressions को आप evaluate करते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आपको उसका प्रेसिडेंस देखना होता है, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यू हैव टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशंस इन पाइथन. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज गिवन. यू कैन टेक a snap of this. Operators are given, different types of operator along with the description. First one is parenthesis, that means the highest priority, the topmost priority is given to the parenthesis symbol, that is grouping symbol. Then exponentiation, bitwise, positive, negative, then multiplication, division, float division, remainder, then addition, subtraction, bitwise and bitwise XOR, bitwise OR, then comparison. That means अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर गिवन द हाईएस्ट प्रेसिडेंस. सबसे पहला प्रेसिडेंस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को दिया जाता है, उसके बाद कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर को दिया जाता है. रिलेशनल ऑपरेटर में आप देख सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ साथ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, इज नॉट. इसका भी प्रेफरेंस जो प्रायोरिटी है वो कंपैरिजन ऑपरेटर की बराबर है. नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज बूलियन, नॉट, एंड, और. तो आपको ये जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है वो आपको अच्छी तरीके से याद होना है. आप ऑपरेटर का प्रेसिडेंस आप याद रखेंगे तभी आप करेक्टली किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे. होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप कास्टिंग. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन? व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कास्टिंग इन पाइथन? See on the screen, it is user defined conversion that forces an expression to be of specific type, or you can define it as the explicit conversion of an operand to a specific type is called as type casting. यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप एक किसी पर्टिकुलर टाइप में आप फोर्सफुली या एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन. In Python, it is performed in the following manner. You have to give the data type, then you have to write the expression. See here, first you have to define the data type. किस टाइप में आपको इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है वो आपको पहले मेंशन करना होता है, देन आपको एक्सप्रेशन लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग a equals to 5, b equals to 2.0. Here it is numeric type, it is floating type. Now if I want to convert this into इंटीजर टाइप, न्यूमरिक टाइप में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लिसिटली यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर, तो अब आप क्या यूज़ करेंगे? टाइप कास्टिंग को यूज़ करेंगे. तो पहले आपको पता है उसका सिंटेक्स क्या है. फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द डेटा टाइप. डेटा टाइप यहाँ पर आपको क्या करना है? यू वांट टू कन्वर्ट इट फ्रॉम फ्लोट टू इंट, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप आपको बताना होगा. आई एम राइटिंग एज इंट. देन एक्सप्रेशन क्या है? आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द वैल्यू रेफर्ड बाय द वेरिएबल बी जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है उसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में. सो आई हैव टू राइट लाइक दिस. इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? It will be typecasted from float type to integer type. It is also an important topic. Typecasting, somewhere in the program it is used. Hope it is clear to you. So in today's class we have seen the remaining 2 data types, tuples and dictionaries. Then हमने start किया expressions के बारे में. We have seen different types of expression available in Python. We have seen the operator precedence. Then the last topic was typecasting. Hope whatever we have learned today, it is clear to you. In the next class,
we are going to start statement flow control, which is a very important topic in Python. Next class में हम statement flow control के बारे में पढ़ेंगे. Till then, keep learning and keep practicing.